ناظرین آداب، بدلتے منظر کے شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس شمارے کے اہم موضوعات پر۔ کشمیری خواتین اشپاز نے بدلی روایت اور بدلا وازوان کا ذائقہ۔ ڈل جھیل کا ندرو یعنی کنول کی ککڑی بیرون ملک پہنچنا شروع ہو گیا۔ پونچھ میں میگا کسان میلے کا انعقاد، نئی ٹیکنالوجی اپنانے پر زور۔ فوج نے گاندربل میں خواتین کے لیے پیشہ ورانہ تربیتی مرکز قائم کیا۔ راجوری ضلع میں ایکلوویہ ماڈل رہائشی اسکول بچوں کے لیے کھولا گیا۔ جموں و کشمیر میں خواتین کو بااختیار بنانا حکومت ہند کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں تھا، لیکن اب تک کیے گئے اقدامات نے بہت سی نوجوان لڑکیوں نے گھر میں بیکار بیٹھنے کے بجائے اپنے یونٹس قائم کرنے کا انتظام کیا ہے، جہاں وہ اپنی روزی روٹی کماتی ہیں۔ وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل سے تعلق رکھنے والے دیہی خواتین کے ایک سیلف ہیلپ گروپ نے روایت توڑ کر وازوان کا پیشہ اختیار کیا۔ دیکھیے اپنی نوعیت کی یہ پہلی اور منفرد حوصلہ افزا رپورٹ۔ کشمیر کی جوان سال محنت کش لڑکیوں نے دقیانوسی تصورات کو توڑتے ہوئے مرد غالب پیشے کا انتخاب کیا۔ کئی خواتین نے سیلف ہیلپ گروپ اور سرکاری اسکیم سے مستفید ہو کر کشمیری وازوان تیار کرنے کے لیے روایت ہی بدل دی۔ یہ ایک مردانہ کام تھا، لیکن گاندربل ضلع کی تقریباً نصف درجن لڑکیوں نے دقیانوسی تصورات کو توڑ کر اس پیشے سے خود کو منسلک کیا ہے اور اپنا نام بھی کمایا ہے۔ خواتین کے اس گروپ نے نہ صرف وازوان تیار کرنے کا فیصلہ لیا بلکہ اپنی صلاحیتوں کو منظر عام پر بھی لایا۔ خواتین کی اس کوشش کو مقامی لوگوں نے خوب سراہا۔ بہت اچھا لگا مجھے، بہت اچھا۔ میں کتنی تعریفیں کروں وہ کم ہے، کیونکہ جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ بائز ہوں گے، تو جب ہم یہاں پہنچے تو میں نے اپنی بہنوں کو یہاں پہ دیکھا اپنی محنت مشقت کر کے، تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں کے یوتھ بہت آگے بڑھ رہا ہے، کہ ہمارے بہنیں جو اپنے ہاتھوں سے یہ بناتے ہیں، اپنے محنت کش کرتے ہیں، تو ہم بہت خوش ہوئے ہیں یہ دیکھ کر کہ یہاں ہمارے بہنیں بہت محنت کرتے ہیں ہم کو۔ اور میں نے جو یہ کھایا، یہ بریانی کھایا، بہت ٹیسٹ تھا اس میں۔ نوجوان لڑکیاں جموں کشمیر نیشنل رورل لائیولیہوڈ مشن کے ذریعے سرکاری اسکیم امید کے فعال تعاون سے معاشرے کے اندر خود کو ثابت کر رہی ہیں۔ وازوان تیار کرنے کا پیشہ مردوں کا ہے، لیکن کشمیری خواتین نے اب گھر کی رسوئی سے باہر نکل کر انہیں کھلا چیلنج دیا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک نئی چیز بھی تھی، کیونکہ اب تک صرف مرد ہی وازوان تیار کرتے تھے۔ وازوان تیار کرنے والی خواتین کا کہنا ہے کہ ہمارے سفر کے آغاز میں لوگوں کی طرف سے ہم پر تنقید کی گئی اور بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل گیا، کیونکہ خاندان کے ساتھ ساتھ معاشرے نے بھی ہماری تعریف کرنا شروع کر دی۔ ہم نے ریسنٹلی سٹارٹ کیا ہوا ہے یہ کام کشمیری وازوان، جو کہ ہم نے سوچا کہ آج تک کشمیر میں صرف جینٹس کرتے آئے ہیں یہ کام، لیکن جب ایک سسرال والوں کو بہو چاہیے ہوتی ہے تو وہ بھی ایک لذیذ کھانا ڈھونڈتے ہیں اس کے ہاتھ کا، تو اسی لیے ہم نے کشمیری وازوان سیکھا اور ہم نے یہاں پہ کشمیری وازوان کا سٹال بنا رکھا۔ وازوان تیار کرنے والے کو وازا یا وسطا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت سی مشکلات کو شکست دیتے ہوئے کشمیری خواتین نہ صرف ناقدین کے خلاف کھڑی ہوئیں بلکہ وہ مردوں کی بالادستی والی ملازمتوں کو ترجیح دے کر وادی میں دقیانوسی تصورات کو توڑنے میں کامیاب ہوئیں۔ ہر طرف سے انہیں پذیرائی مل رہی ہے۔ کشمیر کے مشہور عالم پکوان، جسے عرف عام میں وازوان کہا جاتا ہے، لوگوں کو خاص طور پر شادیوں، اہم تقریبات اور دیگر خاص مواقعوں پر پیش کیا جاتا ہے۔
یہ جو ہمارا یہ فوڈ سٹالز کا جو آپ نے دیکھا یہاں پہ سارس میں، یہ ہمارے 15 سٹالز ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکیاں کس طرح کام کر رہی ہیں. اور یہ جو لڑکیاں ہماری ہیں، سری نگر کی ہے ایک سٹال جو ہمارا چل رہا ہے. دے آر ٹرینڈ ان دس تندورز اینڈ فش ریسیپیز. ان کو آلموسٹ 40 ریسیپیز فش کی جو ہے اس کی ٹریننگ ہم نے دی ہے تھرو انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ. اور ان کا کنٹینیوسلی ٹریننگ کا سپورٹ ہم JKR کی طرف سے کنٹینیوس سپورٹ ملتا آ رہا ہے. اور آج ماشاءاللہ دے آر ڈوئنگ پریٹی ویری ویل. اور کل جو ان کی سیلز تھی وہ ٹچ ہوئی اراؤنڈ 80,000. اور یہ سارا خود ہی یہ مینیج کرتی ہیں، اور جس میں ان کی جو ویرائٹی ہے نان ویج فوڈز کی بھی ہے، اور اس کے علاوہ ویج کا بھی ان کا کافی اس میں فوڈ جو ہے اس کی سیل ہوتی ہے. یہ سب NRLM کی امید اسکیم کے تعاون سے ہوا کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب رہیں اور اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والی لڑکیوں کے لیے ایک مثال بھی بن گئیں. ان خاص خواتین کو سری نگر کے بولیوارڈ علاقے میں منعقدہ 11 روزہ سارس میلے میں پذیرائی بھی ملی. رورل لائیولیہوڈ مشن کی اسکیم امید کے ساتھ اس وقت جموں کشمیر کی 6,000 سے زائد خواتین جڑی ہوئی ہیں اور 2023 کے آخر تک یہ تعداد 9,000 تک پہنچنے کی توقع ہے. وادی کشمیر کی مشہور و معروف سبزی یا غذا ندرو یعنی کنول کی ککڑی بیرون ممالک ایکسپورٹ یعنی برآمد ہونے شروع ہو گیا ہے. حالیہ ایام کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اپنے خطاب میں اس کا ذکر کیا. یہ سب کس طرح اور کیسے ممکن ہوا اور کشمیری ندرو یہاں کے بازاروں سے نکل کر 7 سمندر پار کیسے اپنا مسکن بنانا شروع کر دیا ہے، آئیے جانتے ہیں اس خاص رپورٹ میں. ڈل جھیل کی مشہور و معروف سبزی یا غذا ندرو یعنی کنول کے ککڑی بیرون ممالک ایکسپورٹ یعنی برآمد ہونا شروع ہو گیا ہے اور اب کشمیری ندرو نے UAE تک کا اپنا سفر مکمل کر لیا ہے. نو تشکیل شدہ فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشن FPO نے کنول کی ککڑی یعنی کشمیری ندرو کی 2 کھیپیں اور دیگر سبزیوں کو یونائیٹڈ عرب امارٹس تھرو لالو گروپ کے ذریعے برآمد کرنا شروع کر دیا ہے. تقریباً 1 مہینے سے پہلے ہم نے جو لوٹس اسٹیمپ تھے ہم نے وہ دبئی بھیج دیا ہے، اور ہمارے ساتھ اور بندے تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. اور اس وقت ہم ندرو جو ندرو نکالتے ہیں لوٹس اسٹیمپ ہم انہی کے پاس ہے اس وقت. تقریباً اس وقت یہاں تقریباً 40,000 کی یہاں پاپولیشن ہے. اس میں تقریباً 30,000 اس میں وابستہ ہیں جو سبزیاں نکالتے ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ ندرو اگانے والے کسانوں کے لیے اس طرح کا کوئی منصوبہ تیار کیا گیا. ماضی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. بیرون ممالک یا ریاستوں میں مقیم کشمیریوں کو جب بھی ندرو کی یاد ستاتی تو اپنے رشتہ داروں کے ذریعے منگوایا کرتے تھے، لیکن اب ایکسپورٹ ہونے سے نہ صرف کشمیری ندرو بیرون ریاست اور بیرون ممالک مقیم کشمیریوں تک آسانی سے پہنچ رہا ہے، بلکہ اب غیر مقامی بھی اس کے ذائقے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. کاش کے لیے اگر دبئی ہو جائے گے وہ لوگوں کے فائدہ ہوتا ہے. اور بس ٹھیک ہے. اور سبزی بیچتے ہیں اور ہر کیا چیز بیچتے ہیں، اور کدو، کھیرا، ٹماٹر، بینگن، مٹر اگر دبئی جاتے ہیں وہ لوگوں کے فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک. اس طرح کا آج زیادہ سیزن ہے ندرو کا. آج ندرو کا ہاں بیچ گیا. یہاں کشمیری آتا ہے یا اسے کم قیمت آتا ہے، اگر وہ دبئی جاتا ہے وہ ٹھیک قیمت آتا ہے. اس اقدام کا بنیادی مقصد ڈل جھیل کے کسان برادری کی ترقی اور حکومت کی فراہمی سے ان کی آمدنی میں اضافہ کرنا ہے. اس برآمدی عمل سے پروڈیوسر بھی اچھی قیمت حاصل کر رہے ہیں. یہ ایک تاریخی اور ترقیاتی قدم ہے جو کسانوں کی مدد کر رہا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو ڈل جھیل میں ندرو اور دیگر سبزیاں پیدا کرتے ہیں. کشمیری ندرو کی مانگ مسلسل بڑھ رہی ہے. اس مانگ کے پیش نظر ڈل جھیل میں ندرو کی کاشت کرنے والے کسانوں نے
फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन तश्कील दी है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनका जिन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया है एफपीओ का, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा बना हुआ है डल लेक लोटस स्टैम्प कंपनी। तो बिल्कुल इसके लिए भी जो है ना हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। इसके लिए जो हमें जो मदद मिली है वो CBBO की तरफ से मिली है, बायोसर्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। तकरीबन उन्होंने यहाँ पे 5-6 दौरे किए हैं, यहाँ पर अवेयरनेस कैंप किए हैं, जिनके वसादत से हमें ये जो है तो 250 फार्मर जो है हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल जो मुतमईन ही नहीं थे, जिनके पास ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ये FPO है क्या, हम किस तरह जो है अपनी सब्जी, बिलखुसूस जो सीज़न इस वक्त चल रहा है लोटस स्टेम का, नदरू का, ये हम बाहर ममालिक में एक्सपोर्ट कर सके। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट हमारे पास था ही नहीं है, ना अभी तक कोई कॉन्साइनमेंट बाहर गया है। तो इसके लिए जो है कलीदी रोल जो अदा किया है वो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नाबार्ड, उनका इसमें बड़ा रोल रहा है, CBBO का इसमें बड़ा रोल रहा है। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम के 99वें एडिशन में अहले वतन से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि डल झील अपने लजीज कमल ककड़ी या नदरू के लिए भी काफी मशहूर है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में डल झील का नदरू बैरून मुल्क पहुंच रहा है और इससे किसानों की आमदनी में इजाफा हो रहा है। किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी से मुतलिक आगाही फराहम करने और उनकी आमदनी में इजाफा करने के मकसद के तहत मरकजी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के सरहदी ज़िला पुंछ में एक रोज़ा बेदारी कैंप व अजीम शान ज़रई मेले का अहतमाम किया गया। किसानों की एक खासी तादाद ने इस मेले में शिरकत की और अपने स्टॉल्स भी लगाए। किसानों को इस मेले के नतीजे में क्या फ़वाइद हासिल हुए, आइए देखते हैं इस बारे में हमारी यह खास रिपोर्ट। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला पुंछ में कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ की ज़ेर सरपरस्ती नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट व जीनियाती वसाइल ने NBGR रीजनल सेंटर श्रीनगर और स्कॉस्ट जम्मू के बाहमी इश्तराक से काश्तकारों को हयातियाती तनू के मुतालिक बेदारी करने के लिए यक रोज़ा बेदारी कैंप व अजीम शान ज़रई मेले का एहतमाम किया। इस मेले का बुनियादी मकसद किसानों को नई टेक्नोलॉजी से मुतालिक जानकारी देना था। आज जो यहाँ पे किसान मेले का कैंप बना बहुत अच्छा बना और इस कैंप से जो है हमारे किसान भाइयों को बड़ा सारा फ़ायदा मिलता है। इससे जो अवेयरनेस यहाँ पे आज भी दी गई है, इससे पहले भी इन लोगों ने हमारी पंचायतों में दी, हमारे ब्लाकों में ये जो है यहाँ पे वो ग्राम सभा हुए, हमारे ब्लाकों में जो है इसका हुआ। ये जो है इसका बड़ा फ़ायदा है, जैसे हमारा बीज है, आलू है, हर एक चीज़ जो है एटो टाइम पे मिल रही है और एटो टाइम पे जो है हम इसको जो है इस्तेमाल करते हैं, हमारे फसल जो अच्छे बनते हैं। इससे जो है हमारा किसान जो है हमारे किसान भाई जितने भी सारे हैं वो आगे बढ़ सकेंगे। इस मेगा किसान मेले में 150 से ज्यादा काश्तकारों ने शिरकत इख्तियार कर मुकर्ररीन को समाअत किया, जबकि मुख्तलिफ इलाकों से आए काश्तकारों ने कुदरती काश्तकारी से जुड़े ज़रई नमूनों की नुमाइश की, जिनमें सब्जी, फल व कई दीगर अशिया शामिल थी, जिनका कैंप में शामिल मेहमानों ने मुआयना किया और बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले काश्तकारों को नकदी इनामात से नवाजा और उनकी काफी सराहना की। सर यहाँ का जो किसान मेला था वो बहुत अच्छा हुआ। हमें लोरन में भी पहले हुआ 10 दिन पहले किसान मेला, तो यहाँ पर भी जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हुआ तो बहुत अच्छा किसान मेला रहा। इससे हमें कुछ सीखा हमने, जैसे कि मक्की का बीज है, आलू का बीज है और जो सीडें हैं वगैरह हैं। एग्रीकल्चर जो है हमारे साथ हमेशा शाना बशाना साथ दे रही है, अच्छा काम कर रही है। गाँव में जाती है, हर किसान के पास जाती है, हर किसान को समझाती है कि ऐसा सीड लगाओ, मशरूम लगवाओ, उसके बाद आलू लगवाओ। बहुत अच्छा एग्रीकल्चर की तरफ से हमें बहुत हर टाइम सहूलियत मिल रही है, अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, तो हम इसमें बहुत खुश हैं एग्रीकल्चर वालों के साथ में। मुकर्ररीन ने काश्तकारों को हयातियाती तनू के मुतालिक तफसीली तौर बेदार किया। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि आमदनी के ज़राए में इजाफा करने के लिए वो जदीद टेक्नोलॉजी को बरूई कार लाएं। उनका कहना था कि ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना वक्त की अहम ज़रूरत है और इसको सरफ नज़र नहीं किया जा सकता।
ये मेले का मेन पर्पज़ ये रहता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है वो हम फार्मर्स तक ले जाएं, उनको डिस्प्ले करें और जो उनका जो रिच एक्सपीरियंसेस है, जो उनका प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हम देखें, उसको देखते हुए जो गैप्स हैं उसको फिलअप किया जाए। तो गैप्स को फिलअप करते हुए जैसे होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान की बात की मैंने, ये प्रोग्राम की जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो ऐसे गैप्स बढ़ के इसमें ताकि फार्मर्स को हम सपोर्ट कर सकें। मेन टारगेट फिर मैं कहूँगा सबसिस्टेंस जो इसका लेवल है फार्मर्स का, इसको शिफ्ट करना है सस्टेनेबल लेवल पे, जिसमें 29 प्रोजेक्ट्स हम लेके जा रहे हैं फार्मर्स को। ट्रेनिंग चल रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की, 3rd टायर पे हम, इसके बाद फाइनल जो टायर होगा 4th लेवल वो होगा फार्मर्स का, जो कि 24 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक रहेगा। बादअज़ां मेले में शामिल किसानों में ज़रूरी शोबे से जुड़ी जदीद मशीनरी, औजार, तरपाल व दीगर बीज वगैरह के साथ रोजगारों को इफ्तियारी के लिए सामान भी दिया गया। जम्मू कश्मीर में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में फ़ौज भी अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है। जारी मंसूबे के तहत फ़ौज ने वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल में मकामी ख़वातीन की मदद के लिए पेशेवराना तरबियती मरकज़ कायम किया है। सेंटर कायम करने का बुनियादी मकसद ख़वातीन को रोज़गार से हम आहंग करना है। सेंटर में ख़वातीन किस चीज़ की तरबियत ले रही हैं और उनके क्या तासुरात हैं, आइए जानते हैं। फौज ने वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में मकामी ख़वातीन की मदद के लिए पेशेवराना तरबियती मरकज़ कायम किया है। इस सेंटर में शादीशुदा ख़वातीन और लड़कियां सिलाई कढ़ाई का काम सीख रही हैं और अपने मुस्तक़बिल को महफूज बना रही हैं ताकि वो बाइख्तियार बनकर किसी पर इन्हिसार न करें। सर, हमें ये इंडियन आर्मी ने हमें सेंटर खुलाया है, ये टेलर, हमें बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए उन आर्मियों का, और हमें भी ये मौका मिला कुछ सीखने का। तो बेरोजगारी की वजह से हम बेकार हुए थे, इसलिए हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है इन सेंटर में आके। फौज की 34 आसाम राइफल्स ने जिले की मकामी ख़वातीन को खुद कफालत और आज़ादी के साथ बाइख्तियार बनाने की मुसलसल कोशिशों के तहत इस सेंटर को कायम किया है। गांदरबल जिले के छत्रगुल गांव में ये सेंटर कायम किया गया है और मकामी ख़वातीन यहाँ रोजगार हासिल करने के साथ साथ तरबियत हासिल करके बाइख्तियार बन रही हैं। यहाँ पे 34 आसाम राइफल्स ने गोरीपारा में जो वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर खोला है, उसकी वजह से हमारी बहनों को बहुत मदद मिलती है कि घर बैठे वो कुछ सीख सकें, क्योंकि बाहर जाके यहाँ पे सीखने में प्रॉब्लम होती है। और आर्मी वालों और मैं आर्मी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इन्होंने फ्री में खोला है। हमारी बहनों को ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं होती है, कुछ अमल पैसों की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है। तो मैं आर्मी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, 34 आसाम राइफल्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। मकामी ख़वातीन को पेशेवराना तरबियती मरकज़ सिलाई और टेलरिंग की महारतें सीखने का मौका फराहम कर रहा है। हुक्काम का कहना है कि हुनर हासिल करने के बाद उन्हें मुस्तकबिल में अपना टेलरिंग सेटअप शुरू करने और खुद इन्हिसार बनने के लिए मुफीद होगा। यहाँ पे हमारी सोल्जर्स ने जो सेंटर खोला है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ सीखने आ रही हैं वो बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि हम इसका और भी फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे आकर हमें खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इनको यहाँ पे सिखा भी रही हूँ, उसके लिए मैं सोल्जर्स का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा। इलाके की कुल 15 ख़वातीन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में ज़ेर तरबियत हैं। मकामी लड़कियों ने हिंदुस्तानी फौज के इस कदम को सराहा क्योंकि इस किस्म के हुनरमंदी के मराकज़ उन्हें सिलाई की बुनियादी गुर सिखाने में मदद दे रहे हैं। इलाका मकीनों ने भी भारतीय फौज के इस इक़दाम को काफ़ी सराहा। क़बायली बच्चों के लिए मयारी तालीम की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मरकज़ी स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और सरहदी अजला में एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल कायम किए जा रहे हैं। स्कीम के तहत राजौरी में ऐसे कई स्कूल कायम किए गए हैं जिनमें कई एक फ़ाल यानी बच्चों के पढ़ाई के लिए खोल दिए गए हैं। यहाँ बच्चों को किस तरह की सहूलियात फराहम की जा रही है, आइए जानते हैं।
जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के हब्बी गांव में कबायली बच्चों की सहूलत और मुस्तकबिल की पढ़ाई के लिए एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल खोला गया। हब्बी गांव राजौरी जिले के कोटरंका सब डिवीजन में वाक़ा है। हुकूमत ने कबायली बच्चों को तालीम हासिल करने और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए इस इलाके में एकलव्य मॉडल स्कूल की शक्ल में एक शानदार प्लेटफॉर्म फराहम किया है। ऐसा है कि हमारे यहाँ के 95% लोग जो हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं और लेबरर का काम करते हैं, तो उनके बच्चों में टैलेंट तो हर जगह होता है और यहाँ के हमारे बच्चे काफ़ी लायक हैं, पढ़ने में ठीक हैं और यहाँ से बच्चे जो हैं वो बाहर सिटियों में तो जा नहीं सकते, ना जम्मू में ना दिल्ली में, इवन के राजौरी तक भी जाना इनके लिए हमारे यहाँ के बच्चों के लिए मुनासिब नहीं था, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते इतना पैसा। तो इस स्कूल के खुलने से यहाँ पर हर किस्म की फैसिलिटी जो है वो बच्चों को फराहम की जाती है। हाल ही में यहाँ बाज़ाबिता तौर पर क्लासेस का आगाज हुआ। इस स्कूल में जिले के दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले कबायली आबादी से वाबिस्ता तलबा मुस्तकबिल की पढ़ाई के लिए आते हैं। इफ्तिताही तकरीब के दौरान स्कूल में दाखिला लेने वाले तलबा में मुफ्त किताबें, स्टेशनरी, बैग और दीगर जरूरी साजो सामान तकसीम किया गया। मकामी लोगों के मुताबिक ये इलाका पहाड़ियों के दरमियान वाक़ा है और हमें खुशी है कि यहाँ एक स्कूल कायम हुआ है। एजुकेशनली काफ़ी ये बैकवर्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इन ब्लॉक्स में एजुकेशन की एम्पावरमेंट के लिए और स्पेशली जो है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की एजुकेशन को जो है वो एक्सीलेंसी देने के लिए जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल की ये स्कीम शुरू की है। तो इसमें अच्छी जो है क्वालिटी एजुकेशन इन बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें बच्चे हमारे इंजीनियरिंग में, IITs में, IIMs में और MBBS वगैरह में जो है वो पहुँचेंगे। नेचुरल टैलेंट यहाँ है, लेकिन बच्चों को जो है वो प्लेटफार्म नहीं था। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो है एक प्लेटफार्म है जिसमें जो है मॉडर्न एक्सेस जो है वो बच्चों को दी जाएगी। हुकाम के मुताबिक इस स्कूल की तामीर और शुरू करने से कोटरंका और बुद्धल के पहाड़ी इलाकों के गरीब और कबायली तलबा को फायदा हासिल होगा। स्कूल में तैनात असातिज़ा कहते हैं कि हम अपने तलबा के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर बातचीत करते हैं। उनके बड़े ख्वाब हैं, कुछ IAS अफसरान बनना चाहते हैं, कुछ KAS अफसरान और कुछ तिब के शोबे में जाना चाहते हैं। वो सब बहुत बासलाहियत हैं। सर इंशाअल्लाह इनके सपने पूरे होंगे, क्योंकि इनकी मेहनत जो है ये रंग लाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो इनकी प्रैक्टिस है 24 घंटे हमारे यहाँ जो तत्पर ये हाज़िर हैं, 24 घंटे हमेशा ये मेहनत करते रहते हैं। सिर्फ 6 घंटे इनको सोने ही मिलते हैं, उसके बाद बाकी इनका जो दिनचर्या है, जो इनकी एक्टिविटी है वो कंटिन्यू है। और उन एक्टिविटी को देख के ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जितनी अपने सपनों को पूरा करें। तलबा का कहना है कि स्कूल में मौजूद सहूलियात से वो बहुत ही खुश हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल की अच्छी सहूलियात हैं। हम दूर दराज के इलाकों से आते हैं और हमारे वालिदैन गरीब हैं। हुकूमत ने हमें सीखने और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक स्कूल दिया है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर।